today we will conclude this chapter, Elixir of Life, Water. These are the remaining topics which we are going to discuss today. We have already discussed many of these related terms in the previous lectures. So, see, water which I told you is available to us in a particular span of the year, that is rainy season. हमें पानी कब मिलेगा? Rainy season में मिलेगा. Now you all know that rains are not exactly, means the amount of rainfall is not same at every place. It vary from place to place. There is heavy rainfall at one place, there are hardly any rainfall at one place in the same country. There are regions which are being flooded with water, but there are some countries on the contrary where not a single drop of water was received in the rainy season. ऐसा भी हो सकता है. So these actually produce conditions like floods and droughts. So when excess rainfall is there, so what happens is, in excess rainfall which recently occurred in Kota region also आपने देखा होगा, तो what happens is the rivers, water bodies, they are flooded with water, water level in the dams and all, it rises and may submerge the nearby area, डूब भी जाते हैं और ऐसा हुआ भी है. ठीक है. Then it causes, means excess rainfall causes floods, and फ्लड्स का जो डैमेज है वो किस में आएगा? प्रॉपर्टी एंड लाइफ. डिस्ट्रक्शन ऑफ, यू कैन से, प्रॉपर्टी. बहुत चीज़ें लोगों की बिगड़ जाती हैं. पानी भर के आप जान बचाओगे, सामान बचाओगे, जान बचाओगे. So you move away to some place, but your house is being ruined. The furniture and many things, all your commodities which were kept in the house, they are being destructed. Sometimes if the flow is very fast and you are not aware and one is being flowed in the water, then again he or she can lose their lives. So again there is loss of property, loss of lives of many people in condition. और इसका जो post flood condition है, यानी कि floods के बाद क्या होगा? It created, diseases are spread. Water related diseases, गंदे पानी से, गंदी sites हैं, then mosquitoes and flies and other microorganisms which are carrier of the, flies and mosquitoes which are carrier of microorganism, the harmful microorganism, they breed, they spread, and they spread diseases, many diseases like dengue and all. So again excess rainfall भी सही नहीं है, और हम इसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं, so that when it rains in more than required amount, how to handle that situation, we will read in the next topic, that is water conservation. Before that, इसी का just opposite topic हम पढ़ेंगे, that is drought. These are floods, है ना, ये floods के बारे में पढ़ा. अभी हम droughts की देखेंगे, तो जो सिचुएशन है यहाँ एक्सेस रेनफॉल है या स्कैंटी रेनफॉल है. स्कैंटी मीन्स वेरी लेस, इवन कई बार तो मतलब इतनी कम होती है कि ना के बराबर. उसको आप ये मानोगे क्या बारिश, आप सोचो कि पूरे रेनी सीजन में ओनली वन डे आपको रेन हो, और दैट टू एवरेज रेनफॉल की, यहाँ थोड़ी बूंदाबांदी आई और चली गई. तो इज इट द रेन विच शुड बी पॉर्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया इन द रेनी सीजन? नो. सो स्कैंटी रेनफॉल एंड दैट कॉजेज ड्रॉट. सूखा पड़ गया, सूखा. अभी सूखे से भी क्या होगा, आप अगर किसी जगह रेनफॉल नहीं है, स्पेशली दिस इज मीन्स विच एरिया इज मोस्टली अफेक्टेड, विलेजेस आर बैडली अफेक्टेड. क्यों ऐसा होगा? बिकॉज पर्सन लिविंग देयर, दे डिपेंड मेनली ऑन इरिगेशन, दिस फार्मिंग practices. Farming में irrigation is the very important part to get the crop grow, and yield of crop is better if it is irrigated well at whenever it is required. Now the water which is naturally available is not available. अब अगर आपके एरिया में नहीं है
नियर बाय एरिया में नहीं है, तो जो नियर बाय सोर्स है दैट विल टेक वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज या इरिगेशन के लिए देगा, ऑब्वियसली ड्रिंकिंग और अदर पर्पज के लिए लेंगे। सो पीपल अगेन फेस द सेम मीन सिचुएशन, उनका लॉस हो जाता है। तो फसल तो इरिगेट हुई नहीं, क्रॉप भी सारी जल गई, बेकार हो गई, सूखे से बर्बाद हो गई, अगेन लॉस हुआ। और सो इन केसेस ऑफ ड्रॉट्स विलेजेस आर बैडली अफेक्टेड का मतलब कि गाँव में ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है। शहरों में क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कैसे भी करके वाटर सप्लाई करेगा, इतना वाटर तो स्टोर होता है कि ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए आपको सप्लाई हो जाएगी। बट ड्रिंकिंग और ये सब चीज़ें तो हमें तो अवेलेबल है, गांव में जहाँ लोकल सोर्स है और उनकी तो फसल ही बर्बाद हो गई, सब कुछ बेकार हो गया है, क्रॉप नहीं ग्रो की है उनका सब, तो उन्हें या तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एक साल के लिए वो भी कैसे न कैसे बेयर कर लेंगे, कम में गुजारा चलाएंगे जो भी है, तो यहाँ पर भी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। एंड इफ़ बोथ दीज कंडीशंस आर प्रोलॉन्ग्ड यानी एक साल बाढ़ आई, दूसरे साल भी आई, तीसरे साल भी आई, उसी तरह से एक साल सूखा पड़ा, दूसरे साल भी सूखा पड़ा और तीसरे साल भी सूखा पड़ा, तो ऐसी कंडीशन दे रिजल्ट इन फेमीन्स इज आर द कंडीशन इन विच देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर, ना खाना होता है ना पानी होता है। अब यहाँ पानी बहुत है, आप बोलोगे पानी तो बहुत है, पानी है लेकिन गंदा है, पानी है लेकिन बाढ़ का पानी है जो हमारे किसी काम का नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, नॉट फॉर एनी ऑफ द पर्पज, it's so dirty and it is flowing away, who will take the risk to get that water? So यहाँ पर भी पानी नहीं है, यहाँ तो पानी है ही नहीं, ठीक है। और ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, 2-3 साल हो जाए, तो उस जगह पे क्या पड़ जाता है, अकाल, उसको बोलेंगे अकाल पड़ जाना, और फेमीन वही कंडीशन है। और ये तो बहुत ही बुरी वाली कंडीशन होती है, बिकॉज इन दिस कंडीशन पीपल नीड टू मूव फ्रॉम देयर होम फ्रॉम देयर होम टाउन्स, उनकी अपनी जगह छोड़ के उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है कि सो दैट कि जब ये नॉर्मल होगी तो अपने घर वापस आ जाएंगे, जब तक हम कुछ और काम धंधा करके कैसे भी करके अर्न करके अपना पेट भरे, अपना काम चलाए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रियली वेरी बैड एंड व्हाट वन कुड डू वी विल रीड इन दिस coming topic of water conservation. See children, I told you yesterday also and again I am telling you, there are many methods through which we can conserve water. Small water wise habits you can also do, आप भी कर सकते हो। तो water conservation का meaning है, या किसी भी रिसोर्स का जब कंजर्वेशन आता है, देन कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग एंड सेविंग इट फॉर द फ्यूचर। आप तो यूज़ करो लेकिन फ्यूचर के लिए भी उसे सेव करके रखो उस रिसोर्स को। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी विल बी कंजर्विंग वाटर। एंड हाउ वी कैन कंजर्व वाटर, वी कैन कंजर्व वाटर बाय सी many things are there. if you are washing your car and scooters, आपने देखा होगा बड़े बड़े पाइप लगा के जोर जोर से खूब आराम से फ्रेश वाटर को वेस्ट करते रहते लोग, नहीं करना चाहिए। टेक अ बकेट एंड अ मग, आराम से वॉश करो, 1 bucket इज इनफ एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग मीन्स 4-5 एंड मेनी मीन्स यू नेवर नो। कार है तो 15-20 बकेट भी हो सकती है, 10 से 15 भी हो सकती है। इट्स रॉन्ग। वाइल ब्रशिंग योर टीथ यू कीप द टैप ऑन, वेरी रॉन्ग। लीकिंग हो रहा है, कहीं हो रहा है, कोई देख रहा है, ठीक है देख लेंगे सब, बंद कोई नहीं करेगा। लीकेज है कहीं पर टैप्स में या नलों में घर पे, तो उसको ठीक कराना चाहिए। बहुत सारे और भी छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अगर आप वॉश करते हो, ये सारा है, या दाल चावल धो के जो पानी खट्टा होता है उसको फेंको नहीं, खट्टा कर लो। एंड आपका जो गार्डन एरिया है जहाँ प्लांट्स है, वो न्यूट्रिशन भी उन्हें मिलेगा और वहाँ पे वो डाल दो। उसके लिए फ्रेश वाटर क्यों वेस्ट करना है? सो देर आर मेनी मेथड्स एंड वन ऑफ द मेथड इज आई टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जब रेनफॉल हो तब आप उस वाटर को यू कैन स्टोर इट फॉर दी होल नेक्स्ट ईयर, मीन्स द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए जो साल है उसमें आप इकट्ठा कर सकते हो। कैसे? मैंने बताया था कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यू कैन डू बाय कनेक्टिंग अ पाइप फ्रॉम रूफ टू द ग्राउंड, and in ground there is a tank in which water is passing through the tank and then ultimately to the ground. So in this manner the ground water will be recharged and you can get water from the ground through bore wells and all.
अदर देन दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हम कर ही सकते हैं, ट्रीज का ग्रो करना है, एंड ऑल दीज आर अगेन मेथड्स थ्रू विच यू कैन कंजर्व वाटर, एंड अगेन बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। आप डैम्स बनाते हैं, रिवर्स पे डैम्स बनाते हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हैं हम? ये रिवर फ्लो करके जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट हो गया, तो दिस डैम व्हाट विल डू, दिस विल होल्ड बैक वाटर। एक्सेस वाटर है निकाल देगा, एक्सेस नहीं है तो ये यहाँ पर पानी रोक के रखेगा, आगे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इट विल सप्लाई टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर गेटिंग दी, और म्यूनिसिपैलिटी फॉर गेटिंग द फ्रेश वाटर, एंड दिस वाटर सप्लाई टू दी होल सिटी इज, मतलब जितने भी घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब में सप्लाई यहाँ से होगी। तो ये वाटर हम पूरे साल के लिए रोक सकते हैं। ज़्यादा आ गया तो देर, आपने सुना ही होगा ना कि यहाँ पे गेट होते हैं डैम्स में, फॉर दोज वाटर टू गेट आउट, है ना, आगे निकाल दिया। फिर यही रिवर कहीं आगे कहीं जाके जा रही है तो यहाँ पर भी एक डैम है, अगर यहाँ से फ्लो कंट्रोल नहीं हो रहा, आगे दे दिया, आगे भी कंट्रोल नहीं है, वो और आगे भेज देंगे। और इस तरह से हम वाटर चेक कर सकते हैं वाटर को एट एवरी स्टेप, विच आर नोन एज डैम्स, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिंग डैम्स इज अनदर मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर for the future use and current also. Then next topic and the last topic of this chapter is water pollution. Whatever we have read so far is about how to conserve water, how to save water, what water can do, what disaster water can bring. Now this water pollution is again a very alarming cause. कैसे अलार्मिंग कॉज है? बहुत सारी चीज़ों का देखें। सी वाटर विच इज कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर, जो वाटर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब में है, दैट वाटर इज कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेशन मीन्स व्हाट? सी कंटेमिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। पानी है, पानी में थोड़ी मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, चलेगा। पानी में केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स फ्लो करके आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, प्लास्टिक है, डीडीटी पाउडर है, बहुत सारी चीज़ें हैं थ्रू विच वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड। सो दैट इज नोन एज वाटर पोल्यूशन, एंड देयर आर मेनी कॉज। फर्स्ट मैंने बताया ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, सी गवर्नमेंट हैज मेड रूल्स बट हु इज फॉलोइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट हैपेंस इज द वेस्ट जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज इज डायरेक्टली डम्प्ड इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी। जो भी वाटर बॉडी है उसमें डायरेक्टली वो वेस्ट डाल देते हैं। अब इंडस्ट्रीज में कोई साफ सुथरा काम तो होता नहीं, केमिकल्स का और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो व्हाट शुड बी डन, दैट वेस्ट इज एक्चुअली ट्रीटेड। उस वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसका नेचर नॉर्मल किया जाता है, देन इट इज डम्प्ड। बट मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट यू कैन से, these institutions are not following the rules. That is why this is one of the cause. Second cause is we all of us, we are throwing everything. पानी है डाल दो, बह जाएगी, रुक जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, हम तो डाल देते हैं बिना देखे सोचे। ये पॉलीथीन है, कुछ भी है। अब आप देखो, आप जो ये सब वेस्ट डाल रहे हो, डंपिंग जो कर रहे हैं, what happens is due to dumping of waste by polythene and all, they are being eaten by fishes and other organisms which are living over there. वहाँ की लाइफ पे, वहाँ का इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा तो वाटर विल नॉट बी फ्रेश, वाटर विल नॉट बी इन दैट मैनर, it would not be available to us in a proper manner. So again that should not be done, है ना। These pesticides को आपने क्या करा, and insecticides को क्रॉप्स पे छिड़क दिया। अब आपने तो क्रॉप पे डाला, लेकिन उनको वॉश तो करोगे, यूज़ करने से पहले वॉश करोगे तो जो पानी है उसमें आ गया वो केमिकल, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। स्प्रे करने के बाद भी जब रेनफॉल होगी तो धुल के आ जाएगा। अब वो जो है वो कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली लैंड को भी पोल्यूट करेगा, सॉइल को तो करेगा ही सही, और जो पार्ट वाटर के साथ फ्लो डाउन हो जाएगा दैट विल अल्टीमेटली पोल्यूट द वाटर ऑल्सो. So these are main reasons why how water gets polluted,
and one should not do all these things. Water, I said earlier, also is available in enough amount, enough. 1% which is present in liquid form in the form of rivers, lakes, ponds and all, that is enough for a man use. But how to use, how to conserve, how to keep it fresh, how not, see polluted water को आप यूज़ नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा, तो अब उसका प्रोसेसिंग के लिए आपको फिर से इनकम लगानी पड़ेगी, लेबर लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट दैट वाटर. सो यू हैव टू पे प्राइस. एंड अगेन इफ इट इज़ नॉट डन इन योर एरिया, जस्ट लुक एट द फेस एंड जस्ट कंजर्व वाटर. फिर वाटर के लिए लड़ाई होगी. एंड मैंने तो ऐसा भी कहीं पढ़ा है कि अगली जो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगी तो इट विल बी जस्ट फॉर वाटर. So this is an alarming call for all of us that we should save water, we should conserve water, we should make judicious use of water. Water is a precious resource which is really very important for the sustenance of life on our planet, and we should value for all the natural resources available to us, and especially this water and air we have read earlier. So this was about the whole chapter. We have completed the last chapter also of your class. Okay. So we have completed all the 6 topics. Thank you.